अरे अरे अरे, ये डेड बॉडी, ये किसकी डेड बॉडी है? मुझे मार डाला है। हट ये नेताओं ने। कैसे मारा भैया? प्रदूषण से और गंदगी फैला के। I am the devil. I am the development. I will kill nature. I will destroy greenery, trees, rivers. Pollution is my vehicle. There will be nobody left on earth. I will kill everyone. जय श्री यमुना मैया। जीवनदायिनी यमुना नदी आज संकट में है। कुछ लोग मानते हैं कि नदी एक बड़े नाले में तब्दील हो चुकी है। पिछले कई दशकों में अनेकों प्रयास हो चुके हैं। धरना प्रदर्शन, लॉन्ग मार्च, रैली, हड़ताल। समय समय पर जनप्रतिनिधियों व सरकारी नुमाइंदों द्वारा यमुना के शुद्धिकरण व उद्धार के लिए अनेकों घोषणाएं हो चुकी हैं। वर्तमान सरकार के ही एक मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 2015 में दिल्ली से आगरा तक यमुना नदी में स्टीमर चलाने का वायदा किया था। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनावों से पूर्व यमुना को शुद्ध करने और अविरल जल प्रवाह पूरे साल की व्यवस्था करने पर जोर दिया था। आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यमुना के बारे में चिंता व्यक्त कर चुके हैं और ताजमहल के डाउन स्ट्रीम में यमुना बैराज निर्माण की घोषणा कर चुके हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अनेकों मर्तबा यमुना शुद्धिकरण के मसले पर कई आदेश कर चुके हैं, लेकिन आज तक यमुना को शुद्ध करके उसके अतीत के गौरव को पुनः स्थापित करने का कोई भी प्रयास रंग नहीं ला सका है। रिवर कनेक्ट अभियान से जुड़े सभी सदस्य यमुना नदी की दुर्दशा देखकर आहत हैं। प्रतिदिन संध्या आरती के माध्यम से यमुना जी से प्रार्थना करते हैं और सत्ता प्रतिष्ठान का ध्यान आकर्षित करते हैं कि ब्रजमंडल की जीवन रेखा को संरक्षित करने के लिए अविलंब ठोस कदम उठाए जाएं। धन्यवाद। Fellow human beings and all living creatures on this planet, as we offer you greetings on the World Environment Day, we also wish to draw your attention to how our water bodies, the lifelines of many cities and cultures, are being destroyed by greedy groups of vested interests. Our chief focus this day is on the river Yamuna, that sustains not only life but also nourishes culture, faith, history, and architecture, all the way from the Yamunotri Glacier to Prayagraj, where Yamuna merges with the Ganges and the legendary Saraswati. Despite long years of protests, dharnas, marches, and rallies, the successive governments at the center and the state have callously neglected Yamuna and done nothing to save a dying river, which now has been reduced to a vast sewage canal. Ahead of the World Environment Day, June 5, river activists in Agra and Mathura have again voiced their concern over the dry and polluted Yamuna, the lifeline of the entire Braj Mandal. They have, in letters and memorandums, demanded cleaning of the riverbed to rid the river of toxins, industrial effluents, and pollutants. River activists have demanded thorough dredging of the riverbed from Vrindavan to Agra's Bateshwar, the holy town with 108 Shiva temples in a row along the bend of the Yamuna. The deplorable condition of the river Yamuna can only be set right if urgent measures are taken to desal the river before the monsoon rains. It may be mentioned here that tourism is dependent on the river Yamuna, as all major monuments are sited along its banks. River Connect campaign members say that for the past 7 years, they had been persuading the state and the union governments to initiate appropriate measures to save Yamuna from dying. Yamuna needs cleaning. It needs uninterrupted flow of water to dilute the pollutants and sustain aqua life. The state government is dragging its feet on the Yamuna Barrage project, downstream of the Taj Mahal.
Despite promises, no concrete action has been taken. They have accused the 9 MLAs, 3 MPs of the BJP from Agra for their callous apathy. Nitin Gadkari had promised in 2015 that steamers would ferry tourists from Delhi to Agra, but now he has completely forgotten the issue. River Yamuna constitutes a critical component of the Agra environment, whose good health is vital for the maintenance of historical buildings that attract millions of tourists round the year. The high level of dust in the ambient air is hurting the Taj Mahal and other monuments. The dry and polluted river has become a breeding ground for harmful bacteria and mosquitoes that deface the white marble. The situation is indeed grim. If people do not wake up now, tomorrow will be too late. Already, the COVID pandemic has taught us a devastating lesson. What can happen if we continue to exploit nature beyond a sustainable point? Wake up, fellow citizens. Save nature, protect water bodies, reduce, recycle, and reuse. Water is life, and rivers are the nurturing mothers of our lives. So kindly save the river near you. I, Pooja Balutia, wholeheartedly support the National River Connect campaign. For a majority of people in India, while Ganga is Mokshdaini, River Yamuna is Jeevandaini. Along its banks flourished history, politics, trade, culture, and the Vaishnav Sri Krishna Radha Bhakti movement. The Mughals and later the British had built dozens of monuments and forts at its banks. Such is the legacy of River Yamuna. But what of today? How do we describe Yamuna today? A sewage canal, a drain, a big gutter, a civilizational sink? From the life-giving Amrit to death-dispensing poison has been the cruel tale of this river, which, even in its dying stages, is sustaining the life of millions of people. Existence of rivers is the country's existence. River Yamuna is breathing its last. Please do contribute to save Yamuna from being killed. Do support our mission by joining the National River Connect campaign. Jai Hind. नमस्कार, आप सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब समय आ गया है कि पर्यावरण दिवस सिर्फ एक दिन नहीं वरन साल के पूरे दिन हमको पर्यावरण दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि इसका प्रमुख घटक पेड़ पौधों के प्रति जो हमने अपनी उदासीनता दिखाई, उसका परिणाम हम सभी ने अपना सब कुछ बेचकर कृत्रिम ऑक्सीजन खरीदकर चंद सांसें खरीदी। अगला चरण कहीं जल के रूप में हमारे सामने ना आए, क्योंकि ना तो हम कृत्रिम जल बना पाएंगे ना ही खरीद पाएंगे। आगरा की जीवनदायिनी यमुना माँ आज बहुत ही शोचनीय अवस्था में है। अधिकारीगण, नेतागण और स्थानीय जन समुदाय को मिलकर इसके प्रति प्रयास करना होगा। इसके संवर्धन के लिए जो मुझे समझ में आता है वो है एक बैराज। अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है इसकी। बैराज के माध्यम से ही हम अपने जल को साल भर के लिए संरक्षित कर पाएंगे। धन्यवाद। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर हम आगरावासी यमुना नदी के संरक्षण, संवर्धन, साफ सफाई, डिसिल्टिंग, ड्रेजिंग इत्यादि की डिमांड करते हैं। आगरा में यमुना की दुर्दशा किसी से छुपी हुई नहीं है। एक गंदा नाला भी शायद यमुना से अच्छी स्थिति में बहता होगा। इतनी पौराणिक ऐतिहासिक महत्व की नदी को आज नाले में बदलते देख आगरावासी वाकई बहुत दुखित हैं। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों से प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र कोई यमुना जी के प्रति का सार्थक कदम उठाएं और यमुना जी को फिर से स्वच्छ साफ करके जीवनदायिनी का रूप दें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अमित कोहली। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आप सभी को डराऊं, लेकिन ये सत्य है कि हमारे ऊपर एक बहुत ही भयानक संकट मंडरा रहा है। अगर आप इस संकट को नहीं झेलना चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं कि इस संकट से आप प्रभावित हों, तो कृपया करके अपने शहर की नदियों को बचाएं। इस समय जो स्थिति आगरा में यमुना नदी की, अन्य शहरों में वहाँ की नदियों की है, बहुत ही दयनीय है। अगर आप चाहते हैं कि ये संकट हमें ना झेलना पड़े, तो कृपया करके अपनी शहर की नदियों को बचाने के लिए प्रयास करें और सुखी रहें, खुश रहें, आगे बढ़ें। जैसा कि सर्वविदित है कि माँ गंगा की ही तरह से यमुना मैया भी उतनी ही पवित्र है, परंतु वर्तमान में उसकी दुर्दशा देखी नहीं जाती, जिसको स्वच्छ बनाने में
आदरणीय श्रीमान ब्रज खंडेलवाल जी एवं उनकी पूरी टीम लगी हुई है। मेरा क्षेत्र के निवासियों से, देश के निवासियों से, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस पुनीत कार्य में वे सभी सहयोग करें। जय यमुना मैया। एक कहावत है, जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ भगवान का वास होता है। और हमारे देश में वैसे ही नदियों को माता का स्थान दिया गया है। यदि हमारे यहाँ नदियाँ अर्थात माताएं सुरक्षित नहीं है, साफ़ नहीं है, तो हमारा भविष्य क्या होगा, ये कहने की कोई बात नहीं है। सर ब्रज खंडेलवाल के नेतृत्व में लगभग 5 से 6 सालों से अनवरत रूप से एक यमुना आरती स्थल तैयार किया गया है, जहाँ पर निरंतर रूप से आरती की जाती है। वहीं से हम सभी जुड़े हुए हैं। उसका उद्देश्य है कि यमुना में एक ब्रिज बनाया जाए, पानी की सप्लाई हो और साफ़ सफाई वहाँ पर दी जाए। मैं पंडित प्रमोद गौतम जो है चेयरमैन वैद्य सूत्र चाइल्ड, इस समय यमुना आरती स्थल पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यमुना में कितनी गंदगी का आलम फैला हुआ है। आजकल कोरोना वायरस का प्रकोप वर्ष 2020 से आरंभ हुआ था, पूरी दुनिया में फैल रहा है। भारत में तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी पीछे रीजन है कि हमारी पौराणिक धरोहर जो हमारे जो नदियाँ हैं, धरोहर है, उनको पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया। गंदगी का इस तरह से आलम फैला हुआ है। खुद देख सकते हो ये यमुना हमारी चौथी पटरानी मानी जाती है, उसके बावजूद भी यहाँ गंदगी का आलम है। सरकार भी किसी प्रकार का विशेष ध्यान नहीं दे रही है। पूरा शहर का नाला, कचरा, पानी सारा का सारा इसके अंदर समाहित होता है। तो सरकार थोड़ा इस पर विशेष ध्यान दे, जिससे हमारी देवी धरोहरों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। जो हम सभी लोग आज रिवर एक्शन डे के मौके पर, जो कि इंटरनेशनली मनाया जाता है, उसके मौके पर हम लोग सभी यमुना आरती स्थल एतमद्दौला व्यू पॉइंट पर इकट्ठे हुए हैं। और अभी यहाँ पर भव्य आरती का आयोजन किया गया। उसके साथ साथ यमुना माता को दुग्ध चढ़ाया गया, उसके साथ साथ दीप अर्पित किए गए और यही कामना की गई यम की बहन यमुनी से कि हे मातेश्वरी, आप अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ यहाँ उपस्थित हों और यहाँ आएँ। और मैं शासन, प्रशासन, देश प्रदेश की सरकार से यह अपील करता हूँ, यह निवेदन करता हूँ कि किसी भी तरह इस यमुना को बचा लें, जो कि धीरे धीरे तड़प रही है और मर रही है। क्योंकि दिल्ली से पूर्व आप यमुना का पानी बिल्कुल इतना सौंदर्य और स्वच्छ देख सकते हैं, लेकिन जय ही वह आगरा में आती है और जो कि हमारा देश ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है, उसके पीछे अगर आप इसकी स्थिति देखें तो आपको अपनी नाक को दबाना पड़ जाता है। तो मेरी शासन प्रशासन से यही अपील है, यही मांग है कि कृपया करके इस यमुना की माँ, हमारी जो माँ है, उसको सुधारें, उसको सुधार लाएँ, इसमें डिसल्टिंग का कार्यक्रम करें ताकि ये यमुना निरंतरता यहाँ बह सके। एक डैम नहीं, एक चेक रबर डैम की स्थापना, जो कि 4 साल पूर्व उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने किया, उसको लेकर उसको आगे कार्यवाही उस पर की जाए ताकि यहाँ पे पानी की निरंतरता बनी रहे और यहाँ पर जो आज ये माँ हमारी नाले में तब्दील हो गई है, उसको पुनर्जीवन दिया जाए। मैं इसी के साथ आप सभी के साथ निवेदन करता हूँ, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी माँ के बारे में सोचें, एक बार देखें। तुम्हारा बड़ा महात्म, तुम्हारा बड़ा महात्म, चारों वेद कही। जय यमुना माता, आन तुम्हारे माता, प्रभु अवतार लियो। नमस्कार। पर्यावरण दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानव जीवन के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल के बिना जीवन नहीं है और आज जल की स्थिति बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। आप लोग सब जानते हैं कि जल का एक मेन स्रोत हमारी नदियां हैं, जिनसे हमको जल प्राप्त होता है और नदियों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारी यमुना मैया बहुत ही दयनीय स्थिति में है
और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी यमुना मैया के बारे में सोचें, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो आने वाली नस्लों को हम क्या दे पाएंगे। दर दर पानी के लिए भी भटकना पड़ेगा हम लोगों को। हालात क्या हैं आप सभी जानते हैं। मेरी हाथ जोड़ के आप सब लोगों से ये विनती है कि कृपया सब लोग मिल के किसी भी तरह से एक आंदोलन करके सरकार का, प्रशासनिक अमले का ध्यान आकर्षित करें, जिससे कि हमारी यमुना मैया में पानी का बहाव हो और बैराज का निर्माण हो, जिससे यहाँ पे पानी एकत्रित किया जा सके और हम सब लोगों के जीवन को चलाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। यमुना मैया की जय। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ध्यान आगरा में यमुना नदी की हो रही दुर्दशा की ओर दिलाना चाहता हूँ। महाराज जी, आगरा में सारे शहर के सीवर के नाले यमुना जी में सीधे गिर रहे हैं। कृपया कर इन्हें रुकवाइए। और महाराज जी, आप 2 बार आगरा आकर बैराज निर्माण की घोषणा कर चुके हैं तथा स्थल भी आप पसंद कर चुके हैं, तो कृपया कर महाराज जी उस काम को जल्दी से शुरू कराइए। आपकी जय हो। यमुना मैया की जय हो। यमुना नदी को जीवनदायिनी माना गया है, लेकिन आज के दौर में भ्रष्ट अफसरशाही और लाल फीताशाही के चलते यमुना एक गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। इसके लिए शासन प्रशासन दोषी है। यमुना के शुद्धिकरण के लिए तमाम पैसा विश्व बैंक से कर्जा भी लिया जाता है, लेकिन हालात के ज्यों की त्यों बने हुए हैं। आज यमुना तिल तिल करके मर रही है, गंदा नाले में तब्दील हो चुकी है। जो इसके दोषी हैं, इनके विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। सभी यमुना भक्तों से मेरी गुजारिश है कि हम यमुना जी की सफाई के लिए प्रयास करें और सरकार से निवेदन करें कि उसकी डीसिल्टिंग हो और उसकी सफाई हो, ताकि अविरल धारा बहे आगरा में। नमस्कार साथियों, यमुना की दुर्दशा और यमुना की पीड़ा तो सभी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपने इस गीत के माध्यम से यमुना की पीड़ा को इस प्रकार व्यक्त किया है। तो लीजिए। यमुना की धार ना रही, यमुना की धार ना रही, धरती अंबर सूरज सितारे, चंदा वही है वही। ओ यमुना की धार ना रही, यमुना की धार ना रही, ऊंचा हिमालय गंगा की धारा, सागर की लहरें वही। ओ यमुना की धार ना रही, यमुना की धार ना रही। हमारी मथुरा नगरी, हमारा गोकुल, वृंदावन, सब कुछ वही है, वही तीर्थ स्थान बने हुए हैं, लेकिन यमुना की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। मथुरा वही है, गोकुल वही है, गोवर्धन है वही, वृंदावन की कुंज
चल वही, कान्हा की मुरली, राधा की यादें, गीता की गाथा वही, यमुना की धार ना रही, यमुना की धार ना रही। हमारे बहुत से यमुना प्रेमियों ने, विशेष रूप से आदरणीय ब्रज खंडेलवाल सर ने इसके लिए बहुत सारे प्रयत्न किए हैं, लेकिन अभी तक सब विफल रहा है। सीवर बहाए, नाले बहाए, लाशों पे लाशें वहीं, केमिकलों के बहते पनारे, पूजा की थैली वही, धोबी की धुन से, पशुओं के मल से, क्या कुछ कमी है रही, यमुना की धार ना रही, यमुना की धार ना रही। धरती अंबर सूरज सितारे, चंदा वही है वही, ओ यमुना की धार ना रही, यमुना की धार ना रही, यमुना की धार ना रही, यमुना की धार ना रही। ओम शांति। यमुना जी की आरती जो कोई नर गावे, जो कोई नर गावे, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, मन वांछित फल पावे। देखिए, बात बहुत सिंपल सी है, ज़्यादा तो हमारे पास कुछ बोलने के लिए है नहीं। बस हम यही बोलेंगे कि हमें यमुना में पानी चाहिए, थोड़ी सी साफ़ सफाई चाहिए, और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यमुना में पानी लेकर आना। कोई हम ऐसा रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहे हैं। बस आपको नालों को रोकना है, उसमें गंदगी जाने से रोकना है, थोड़ा सा इंडस्ट्री पर कंट्रोल कर लीजिए, और जो साइंटिफिक रीज़न है कि कैसे गंदगी को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे पानी को रोका जा सकता है नदी में काफ़ी दिनों तक के लिए, वो कर लीजिए। और ऐसा तो है नहीं कि कोई कर नहीं रहा है, बाकी के स्टेट कर रहे हैं, बाकी की सिटीज़ कर रही हैं, और अगर हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो हमारे देश में नहीं है तो विदेशों में हो रही हैं। हम उनसे हेल्प लें, हेल्प भी क्यों लेनी है, हम उनसे इंस्पिरेशन लें और वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे ले आएँ। दिक्कत क्या है, हमें तो बेसिक चीज़ बस पानी चाहिए उसमें। तो पानी, कोरोना के बावजूद भी हम मतलब प्रकृति को इतने हल्के में ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? पर्यावरण दिवस अब ये कुछ नहीं है। बस ऐसा लग रहा है कि हम ऑलमोस्ट इतने साल से, इतने महीने से, इतने टाइम से हम कोरोना वायरस को झेलते आ रहे हैं, फिर भी हमें हल्के में लेना है। कोरोना में जब यमुना की गंदगी से उस नाले वाले पानी को पीकर जब कोई नई बीमारी फैलेगी ना, और वेंटिलेटर भी नहीं मिलेंगे,
तब लेकिन दौड़ेंगे फावड़े, कुदालें और वो बड़े बड़े ट्रक उसमें से गंदगियाँ निकालने के लिए। तो वाई टू वेट फॉर दैट टाइम, वाई टू वेट फॉर दैट टाइम, जस्ट डिग इट, अभी करिए ना। विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब एक हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ है? कहाँ दिक्कत है? क्या दिक्कत आ रही है? थोड़ी बहुत हमसे सजेशन ले लीजिए भैया, अगर लगे कि हम कुछ आपकी मदद कर सकते हैं, अगर कुछ ऐसा है जो आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमसे पूछ लीजिए, हम आपको बता देंगे। शायद कोशिश तो कर सकते हैं हम आपको बताने की। बस पानी चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा पानी कि जिसमें पैर डाल के बैठ सके और जिसको ऐसे करके हाथ में पी सके कि ये हमारी यमुना मैया है। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहिए कि जब उसके बगल में बेंच लगी हो तो बेंच पे जब मोमो की ठेल लगी हो ना, तो मोमो वाले से 1 प्लेट मोमो लेके वहाँ पे बेंच पे बैठ के खा सकें और फ़ोटो खींच सकें कि वी आर एट यमुना व्यू पॉइंट। ऐसे थोड़ी, अभी तो वहाँ पे जाने को तो खैर अभी भी जा सकते हैं, पर वहाँ पे अभी नाला है, नाले के सामने हम फ़ोटो खिंचाएं। बात यहाँ पे सिर्फ बात यहाँ पे सिर्फ फ़ोटो खिंचाने की नहीं है, इट इज़ बिगर देन दैट। कब करेंगे आप? जब हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, कब करेंगे आप? कर दीजिए, अब बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है। सारी चीज़ें जब हाथ से निकल जाएंगी, जब ये जान भी नहीं रहेगी देखने के लिए, कुछ भी नहीं रहेगा, तब करेंगे आप। कर दीजिए, ज़्यादा देर मत करिए। डेड बॉडी तो नहीं है? आप सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। केवल नेताओं के भाषणों का हिस्सा और उनके द्वारा राजनीतिक मंचों से किए जाने वाले वक्त बेवक्त खोखले वादे और मॉनिटरी घोषणाएं नदियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए नाकाफ़ी हैं। पर्यावरण की दयनीय स्थिति और नदियों में बढ़ते प्रदूषण के लिए हम सभी स्वयं जिम्मेदार हैं। मानव सभ्यताओं का विकास एवं उनका अस्तित्व में बने रहना केवल नदियों के माध्यम से ही संभव है। गंगा यमुना जैसी नदियों को तो हमारी संस्कृति में माँ का दर्जा प्राप्त है, जिन्हें हमें साथ मिलकर बचाना है। जय यमुना मैया की। आपका नाम? मेरा नाम जगन प्रसाद तेरिया। कहाँ से? आगरा जिले के तेरा गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और यमुना के साथ आप कब से है? मैं सन 2015 से जुड़ा हुआ हूँ इस यमुना रिवर कनेक्ट अभियान में। यहाँ हमारा मेन काम है कि लोगों के, आगरा जनप्रतिनिधियों को बुलाने हेतु समय समय पर यमुना की दुर्दशा को दिखाने के लिए आयोजन करवाते रहते हैं। समय समय पर हम सफाई अभियान भी चलाते हैं। तमाम तरह के हम यहाँ आयोजन करवाते रहते हैं। हमारे यमुना रिवर कनेक्ट अभियान के संयोजक श्री ब्रज खंडेलवाई जी की अनुयायी में हम ये कार्य करते हैं। हमारा मेन उद्देश्य यही है, आगरा के जनप्रतिनिधियों को सरकार के लिए कि इस यमुना के में जितने भी नाले गंदगी चल रही हैं उनको टैप करवाते हुए यमुना की दुर्दशा को सुधारने में योगदान दें। आप सभी को मेरा नमस्कार। वर्तमान में हमारी यमुना माँ की बहुत ही दुर्दशा है। यह एक नाले का स्वरूप ले चुकी हैं।
इसमें प्रत्येक प्रकार की गंदगी तथा बहुत सारे सीवेज और बहुत गंदगी आ रही है। दुर्दशा बहुत ही बुरी है। अतः मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्तर से इसको साफ रखने का प्रयास करें। हम रिवर कनेक्ट ग्रुप के माध्यम से सभी को जागरूक कर रहे हैं। अतः आपसे भी निवेदन है सभी लोग इसे साफ और स्वच्छ रखें।